wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? आप सबका अभिवादन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, आप सब ठीक ठाक तो है ना? Before we proceed in this week's episode, आज के सत्र में आगे बढ़ने से पहले let's recollect from the previous episode. आइए हम छोटी सी पुनरावृत्ति को देखें। So Melchizedek served bread and wine to Abraham. मिल्कीसेदेक ने रोटी और दाखमधु अब्राहम को दिया। You know, there's something mysterious here. आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर कुछ रहस्यात्मक है? The prophet Moses, who wrote the book of Genesis, writes like this. भविष्यवक्ता मूसा जिन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी वो ऐसा लिखते हैं। Who is this Melchizedek? यह मिल्कीसेदेक कौन है? He has no father, no mother. उनके माता या पिता कोई भी नहीं था। No beginning, no end. न शुरुआत है न ही अंत है। We don't know where he came from. हमें नहीं पता कि वे कहाँ से आ गए। He just suddenly came. अचानक ही वो आ गए। And then Abraham, when he looked at him, जैसे अब्राहम ने उन्हें देखा, something evoked in him उन्हें कुछ याद आया that he gave his tithes to Abraham. और उन्होंने अपना दशांश भेंट अब्राहम को दिया। You know, who do you give tithes to? आप जानते हैं कि हम दशांश भेंट किसे देते हैं? Under the Old Testament concept, they bring the tithes to the temple and offer it as an offering to God. पुराने नियम के समय में लोग मंदिर में दशांश भेंट लाया करते थे और परमेश्वर के लिए भेंट देते थे। So tithes is given to God. इसीलिए दशांश भेंट परमेश्वर को दिया जाता है। Something like that happened to Abraham. ऐसा ही कुछ अब्राहम के जीवन में भी हुआ। As soon as he saw Melchizedek, जैसे उसने मिल्कीसेदेक को देखा, something leaped for joy. अंदर कुछ आनंद से उछल पड़ा। And he knew this one cannot be an ordinary man. उससे पता चला कि यह आदमी एक साधारण आदमी नहीं है। And he brought his tithes and gave to him. फिर उन्होंने अपना दशांश भेंट लाकर उनको दिया। But the miracle was Melchizedek came from nowhere. पर अद्भुत कार्य यह था कि ये मिल्कीसेदेक कहाँ से आ गए? Then from where did he get bread and wine to serve to Abraham? और उसे रोटी और दाखमधु कहाँ से मिला अब्राहम को देने के लिए? God gives supernatural provision for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए अलौकिक तरीके से व्यवस्था करते हैं। And we read in the scriptures that Melchizedek gave bread and wine not only to Abraham but also to his men who made war with the kings of Sodom. और हम धर्मशास्त्र में यह पढ़ते हैं कि मिल्कीसेदेक ने अब्राहम को ही न केवल रोटी और दाखमधु दिया पर उनके साथ आए हुए लोगों को भी दिया जिन्होंने सदोम के राजाओं से लड़ाई की थी। So God provides supernaturally for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से व्यवस्था करते हैं। Let's go further in the study of the order of the Melchizedek. आइए हम मिल्कीसेदेक की रीति पर की शिक्षा में और गहराई में चलें। After dying for sin, the Lord Jesus Christ was installed in the order of Melchizedek by the Lord God himself. पाप के लिए मरने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर स्वयं ने मिल्कीसेदेक की रीति पर स्थापना करी। This is written very beautifully, simply and clearly in Psalms 110 verse 4. ये बहुत ही सुंदर, समझने में आसान और स्पष्ट रूप से भजन संहिता 110 के चौथे आयत में लिखा गया है। The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। Now look at the scripture. आइए इस वचन को देखें। You are a priest forever. तू सदा के लिए याजक है। Please underline those two words. इन शब्दों को रेखांकित करें। Priest forever. सर्वदा का याजक। What does that mean? इसका क्या मतलब है? Hebrews chapter 5 verse 6 says, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 6 वचन कहता है,
That means the call is eternal. इसका मतलब यह है कि बुलावा अनंत काल तक का है। It is not a temporary call. यह बुलावा क्षणिक नहीं है। It is not a call for a season. यह एक ऋतु का बुलावा नहीं है। In the book of Revelation, we read प्रकाशित के वाक्य की किताब में पढ़ते हैं that the ministry of the two witnesses is for 3.5 years. 2 गवाह के सेवकाई काल 3.5 साल होगा। And the Antichrist will persecute the Jewish people for 3.5 years. और मसीह विरोधी यहूदियों को 3.5 साल तक सताव में डालेगा। And after the 1,000-year reign of Christ, Satan will be loose from the bottomless pit for a season. यीशु मसीह के 1000 साल के राज के बाद शैतान अथाह कुंड से एक समय या ऋतु के लिए छोड़ा जाएगा। In the book of Daniel, chapter 12, we read of 3 time periods. दानियल की पुस्तक 12वें अध्याय में 3 प्रकार के समय के बारे में लिखा गया है। 1,260 days, 1260 दिन, 1,290 days, 1290 दिन, 1,335 days. 1335 दिन। See, in all the scriptures, we see a time period. ये सब वचन में हम समय की एक निश्चित अवधि को पाते हैं। But when it comes to the Melchizedek priesthood, पर जब ये मलकीसदेक की याजकपन पर आते हैं, there is no time period. यहाँ पर समय की सीमा तय नहीं की गई है। You are a priest forever. आप सर्वदा काल तक याजक है। There's something more interesting I want to tell you. और भी अधिक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा। The word forever in the Hebrew language means olam. सदा सर्वदा जो शब्द है हिब्रू भाषा में ओलाम शब्द प्रयोग किया गया है। It means it's concealed. इसका मतलब है यह छुपाया गया है। It also means it is a vanishing point. इसका ये भी मतलब है कि यह गायब होने की बिंदु है। Vanishing point means it's there and then it's not there. गायब होने की बिंदु या लोपी बिंदु का मतलब यह है कि वो यहाँ पर है और नहीं भी है। It also means time out of the mind. इसका ये भी मतलब है कि दिमाग से परे का समय। It means either the past or the future. इसका मतलब है कि या तो बीता हुआ कल या तो भविष्य। If you put all this understanding together, अगर आप ये सब समझ को एक साथ देखेंगे, it simply means it's practically eternal. ये साधारण रूप से वास्तव में ही सदा सर्वदा है। God exists in a time which is not bounded by a time like how we live. परमेश्वर ऐसे काल या समय में रहते हैं जो हमारी समझ की तय सीमा से बाहर है। We live in a 3-dimensional world. हम 3 आयाम वाले संसार में रहते हैं। If you look at this pulpit before me, अगर आप मेरे सामने वाले पुलपिट को देखेंगे, this is real in 3 dimension. ये वास्तव में ही 3 आयाम वाला है। There is a height, there is a length, and there is a breadth. इसकी ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई भी है। But in the spiritual realm, there is a 4th dimension. पर आत्मिक श्रेणी में चौथा आयाम भी होता है। And that 4th dimension is called the vanishing point. उस चौथे आयाम को लोपी बिंदु या तो गायब होने वाला बिंदु कहते हैं। There is a word in science for that. विज्ञान में इसके लिए एक शब्द है। The scientific word for the vanishing point is called space-time. लोपी बिंदु के लिए वैज्ञानिक शब्द होता है स्पेस टाइम। It means it is not made to appear. इसका ये मतलब है कि यह दिखाई नहीं देता है। Like this pulpit was made physically to appear. जैसा कि यह पुलपिट बाहर से दिखाई देता है। I was born in my mother's womb and made to appear. मैं मेरी माँ के गर्भ में आया और बाहर दिखाई दिया। So are you. आप भी। But the word olam for eternity is not like that. पर सदाकाल के लिए जो ओलाम शब्द इस्तेमाल किया गया है वो वैसा नहीं है। It means it's just there. इसका मतलब है कि वो वहां पर है। Always existing. हर पल अस्तित्व में मौजूद। That is the meaning of the name of God which he revealed to the prophet Moses in Exodus chapter 3 verse 16. यही परमेश्वर के नाम का मतलब है जो उन्होंने भविष्यवक्ता मूसा से प्रकट किया निर्गमन 3 अध्याय के 16वें वचन में। The Lord God said, I am that I am.
यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। That word is called olam, el olam. इसी शब्द को ओलाम कहते हैं, एल ओलाम। Amen. आमीन। Always existing. हर पल मौजूद, No beginning, no end. आदि नहीं, नहीं अंत, The first and the last. प्रथम और अंतिम, The Alpha and the Omega. अल्फा और ओमेगा, The beginning and the end. आदि और अंत। You may recognize that all these titles that I quoted are found in the book of Revelation, which were mentioned for the Lord Jesus Christ. आपको पता चल जाएगा कि ये सब बातें जो मैंने कही है प्रकाशित वाक्य की किताब में मिलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया है। So this again proves Melchizedek made after like the Son of God. जो फिर इस बात की पुष्टि करता है कि मल्कीसदेक परमेश्वर के पुत्र के सदृश बनाया गया है। Under the old covenant temple system, पुरानी वाचा के मंदिर के प्रणाली या रीति पर the Levitical priests begin their ministry at 30 years old लेविया याजक अपने सेवकाई 30 साल के होने पर आरंभ करते थे and they retire at the age of 50. और वे 50 साल के होने पर सेवा से निवृत्त होते थे। After they cross the age of 50, उनके 50 साल होने के बाद priests can still continue to serve, but not on a very regular, active, full-time service. याजक सेवा को जारी तो रख सकते थे, पर पूर्णकालीन हिसाब से हर रोज या प्रभावशाली ढंग से नहीं। We see a proof of this in Luke chapter 1. इसके प्रमाण हमें लूका रचित समाचार पहला अध्याय में मिलता है। The priest Zacharias was more than 50 years old. जकरिया याजक 50 साल से ऊपर के हो चुके थे। But once in a long while he comes to the temple to do his priestly duties. पर कभी कभार वे मंदिर में आते थे याजकपन के कार्य को संभालने के लिए। The book of the Bible called Numbers chapter 4 verse 3, गिनती की पुस्तक 4 अध्याय का 3 वचन, chapter 8 verses 24 to 25 8वें अध्याय के 24 और 25वें आयत tells us there is a limited time for the service of a Old Testament priest. हमें यह कहता है कि पुरानी वाचा के याजकों की सेवा का एक सीमित काल है, But the Melchizedek priesthood is forever. पर मल्कीसदेक का याजकपन सदाकाल के लिए है। It continues throughout eternity यह अनंत काल तक जारी रहेगा, because it is of God. क्योंकि यह परमेश्वर का है। Shall I tell you another secret? क्या मैं आपको एक और रहस्य बताऊं? You must read Zechariah chapter 6 verse 13. आपको जकरिया के 6 अध्याय के 13वें वचन को पढ़ना होगा। This may blow your mind. यह आपके दिमाग को चकराएगा। The Lord Jesus Christ, Lord God, sits on his throne as a king and as a priest. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, एक महाराजा और एक याजक के प्रतिरूप में। That is the order of Melchizedek. यही मल्कीसदेक की रीति पर है। So the order of Melchizedek came from within God. इसलिए मल्कीसदेक की रीति परमेश्वर के अंदर से निकल आया है। Therefore is this eternal. इसलिए यह सदाकाल के लिए है। Amen. आमीन। God bless you all till we meet again next week. अगले सप्ताह मिलते तक प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता
से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।